Yes. So we started with the concepts of trigger and we have done with this use case. We understand like how to make few of the fields of any of the object mandatory with the triggers that already have done. Now let me start with the second use case. Let me write down a trigger on the lead object, which is going to auto-populate the annual revenue based on the industry. Okay, got it. So, if I go to the, okay, I need to first of all log in. 1 second. Your batch is 201. Okay, so we have lead object, right? And if I go to this lead, see, based on the industry, if this is the list of all industries, based on the industry, the annual revenue field should automatically be generated. That is what the question. For example, if the industry selected is banking, it must be what is this ones, tens, 100,000, 10,000 lakh, and 10 lakh. So it must be 90 lakhs for the industry equals to finance. If you select the industry as finance, if the industry is finance, so it must be like 76 lakh, or insurance 45 lakh, manufacturing 84 lakh. That means if someone, if someone actually stores the data, like if the value of the industry is banking, then the value of annual revenue should automatically be stored. That is what we wanted. Okay. So according to this, we wanted certain values to be get change. We wanted certain values to be get changed. That is what the program is all about. That is what the program is all about, right? So, okay, so let me write down this trigger. Let's go to the developer console. New what? Apex triggers. What we are writing? We are writing an Apex trigger. Okay, give a name because I'm constructing it on the lead, so I will be giving this name as what? Lead trigger. Okay, this is the normal what you say. It's a very common naming convention that we usually follow in the real time whenever we give the name to any of the triggers, right? So which object is that? Lead object. So from the list, let me select the object as to be lead. Okay. So with basic details, I'm actually creating a trigger. Now see, lead lead trigger on the lead object. By default, the event is always a before insert. But then I wanted this to be get happen if we are either inserting or if we are updating a record. Okay. If we are either inserting a new record, if we are inserting a new record inside the lead, then also I wanted to this things to be get happen. Or rather, if I'm updating any existing lead record, then also if the industry is finance, the annual revenue should be calculated by itself, right? So I wanted this event to be get fired in both of the cases whenever you are either inserting a new record or rather you are making the changes in an existing record. That means you are updating it. Okay, so this is what before insert and before. Now in the last in the last trigger we have seen how to make a trigger as to be a bulkified trigger. Okay, how to make a trigger as to be a bulkified trigger. Now can any one of you tell me what are the two components that are required to make a trigger as a bulkified trigger? Yes, Prajwal, your mic is on. Yes, can anyone of you wanted to tell me how to make a trigger as to be a bulkified trigger? Hmm. How can we make? बिफोर में कॉमन Sorry, I don't get it. Repeat it. बिफोर को कॉमन करना है Mm-hmm. और उसके बाद में ट्रिगर डॉट न्यू इंसर्ट एंड ट्रिगर डॉट न्यू अपडेट Actually, it's like the bulkification is achieved with two things. The first one is your trigger context variable. The second one is for loop. With these two programming concepts, we used to bulkify a trigger. Okay. So I'm writing like this. If, first of all, the trigger context variable. So if trigger dot if trigger dot
is before. ठीक है, because before is the common event for both of them. If trigger dot is before and then I'm opening a bracket. In the bracket I'm write down trigger dot is insert. ठीक है, or trigger dot is update. ठीक है, trigger dot is insert or trigger dot is update. Now this is my first stage of bulkification of a trigger. What I have done, trigger context variable, I evaluated the trigger context variable. I came to note that there are two different events for which this trigger is going to be get fired. Both of them are before events. Like this trigger ultimately is a before trigger, because this trigger is going to be get fired if you are either inserting before inserting and before updating, means if you are inserting a new record or rather you are making changes in the existing record, so in both of the cases, the event on which the trigger is going to be fired is before. So what I have done over here is like, I actually taken this as a common. So I'm applying this trigger context variable trigger dot is before, and then I'm checking for the condition whether it's an insert or it's an update operation. Now based on that, we are going to design the business logic. So if you are inserting a record or you are updating a record, now you tell me one thing. Whenever we perform insert operation or update operation, what is the name of that memory which is used by the trigger for performing the validation? What is the name of that memory which is used by the trigger to perform the validations? Hmm. Trigger dot Dot Sorry? new. Trigger dot new. Exactly. Very good. Those who have given the answer. So now I'm going for the for loop. Okay, the second stage of bulkification, for loop. You are going to we are fetching everything from one of the memory. Which memory? Trigger dot new. Trigger dot new. So I'm going to fetch each and every record from trigger dot new. What will be the data type of each record? Lead. And every record what I'm getting over here will be of the type lead. Okay. So from this I for loop यहाँ से मैंने अपने दोनों with this both stages like trigger context variable and the for loop, what we have achieved the bulkification. Like, so I'm actually fetching each and every record from trigger dot new memory. The record which is coming from this memory will be of the type lead, है ना, इसीलिए मैंने lead उसका रिटर्न टाइप बनाया और फिर एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल जैसे कि एलडी रिकॉर्ड. अब यहाँ पे मुझे देखना क्या है कि whenever the record is inserting, यहाँ पे जो देखना मुझे ये है कि whenever the record is industry, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसकी इंडस्ट्री क्या है. इफ द इंडस्ट्री इज बैंकिंग तो मुझे एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू ये आई नीड टू सप्लाई दिस वैल्यू ऑफ द एनुअल रेवेन्यू. ये हार्ड कोडेड रहेगा ऑफ कोर्स. अगर फाइनेंस है, अगर इंडस्ट्री इज इक्वल्स टू फाइनेंस, तो दिस शुड बी द एनुअल रेवेन्यू वैल्यू. एनुअल रेवेन्यू फील्ड की वैल्यू 76 लाख हो जानी चाहिए, है ना. तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ. नाउ हियर आई विल बी चेकिंग वन थिंग. तो मैं स्विच स्टेटमेंट यूज करता हूँ, मतलब नेस्टेड इफ एल्स के बजाय मैं स्विच स्टेटमेंट, स्विच ऑन व्हाट, स्विच करिए. आप किस पे स्विच करिए? यू स्विच ऑन ld record dot इंडस्ट्री. स्विच ऑन ld record dot इंडस्ट्री कि जो भी रिकॉर्ड आया, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड, देर आर फॉर एग्जाम्पल देर आर 5000 रिकॉर्ड दैट आर इंसर्टिंग. तो उसमें से जो फर्स्ट रिकॉर्ड आया है, फर्स्ट रिकॉर्ड विच इज ऑफ द टाइप लीड, जब वो एलडी रिकॉर्ड में इंसर्ट हुआ, एलडी रिकॉर्ड में स्टोर हुआ, तो उसका इंडस्ट्री क्या है उसको चेक करो. स्विच ऑन दिस, है ना, उसकी इंडस्ट्री क्या है. ठीक है, उसकी इंडस्ट्री क्या है. नाउ switch on industry. So when industry is banking, if the value is banking, for example if the value is banking, है ना, अगर value है banking, so if it is banking, अगर आपकी इंडस्ट्री की वैल्यू आती है बैंकिंग, तो what you need to do at that time, ld record dot एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए. ld record dot एनुअल रेवेन्यू की जो वैल्यू होना चाहिए, दैट शुड बी, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर, दैट शुड बी दिस. ठीक है, अगर इंडस्ट्री जो है अगर इंडस्ट्री इज बैंकिंग, तो एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू ये हो जाना चाहिए. ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन व्हेन. ठीक है, द सेकंड इज व्हाट, द सेकंड इज आई थिंक इट्स फाइनेंस. द सेकंड इज फाइनेंस. ओके, द सेकंड इज फाइनेंस. इफ द इंडस्ट्री इज फाइनेंस, अगर इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच ऑन एलडी रिकॉर्ड्स डॉट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की जो भी वैल्यू होगी, अगर बैंकिंग होगी तो ये कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, अगर वो फाइनेंस होगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. तो इफ इट इज फाइनेंस, अगर ये फाइनेंस है तो एलडी रिकॉर्ड डॉट एनुअल रेवेन्यू इक्वल्स टू, इतना कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, दैट शुड इक्वल्स टू विच वैल्यू,
ये वाली, अगर ये फाइनेंस है तो दिस शुड बी द वैल्यू. ओके. When the next, when when it is, now for example, when it is, what is the value? Insurance. When it is insurance. Okay, when it is insurance. अगर इंडस्ट्री की वैल्यू इंश्योरेंस है, it's a pretty simple, like it's a pretty simple kind of example. So then LD, annual revenue, the value of annual revenue is 45 lakh. Let me just paste it over here. 45 lakh. Okay. And when it is like insurance, when it is manufacturing, when it is example, when it is manufacturing, okay, then the value of the annual revenue should be 84 lakhs. So I'm just mentioning this 84 lakh. And like when it is when it is education, okay, when it is education, so the value should be 74 lakh. Value should be 74 lakh. And after that, the next is like after education is consulting. Whereas consulting, the value should be this. So I'm just copying and pasting it over here. Last point, and when it is energy, when it is energy, if the industry is energy, this should be the value. So let me copy and paste it over here. Done. That's it. बस इतना ही है. ठीक है. So what you have done, what we have done over here, what we have done over here. Let me first of all save this code. Saving हो रहा है यहाँ पर अभी. So what, first of all, I design a trigger जिसका नाम है lead trigger. I design it onto the lead object. What are the events I wanted this trigger? ये जो event है कि if you are inserting a new record, है ना, if you are inserting a new record or you are making the changes in the existing record, then depending upon your, depending upon, like if you enter the government, if you enter the education and you save it like, so based on that, the value of annual revenue should automatically be calculated. And there are certain different values, certain different hard-coded values have been given, right? So if the industry is banking, this should be the value of annual revenue. So this we are making it to be get happened with the trigger. ठीक है, ये ट्रिगर से कर रहे हैं. तो यहाँ पे बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट था, तो अब मुझे बल्किफिकेशन करना था. तो बल्किफिकेशन मेजरली इज डन विद द टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल. You need to adjust trigger context variable, and second, you need to make a use of for loop, enhanced for loop. So what I have done, like, it was before insert and before update. So I have taken this is before as common, and then if it is either insert operation, if it is either your update operation, you are going to perform the same thing. So because we know whenever it's an insert operation or update operation, okay, with that diagram I told you one thing, okay, whatever is your record, lead or whatever, it is going to be stored inside one of the memory. Okay, it is whether you are whenever you are performing an insert operation or you are performing an update operation, this whole record, one record, two record, how many it could up to store, 50 millions of record, that could be get accommodated into one of the memory. The name of that memory is trigger.new. ठीक है. एंड देन यू नीड टू फेच. आप 50 मिलियन रिकॉर्ड आपने यहाँ स्टोर कर रहे हैं, सबके ऊपर एक साथ थोड़ी ना वैलिडेशन लगाओगे. आपको एक एक रिकॉर्ड को फेच करवाना है, एक एक रिकॉर्ड को फेच करवाना, उस पर वैलिडेशन लगाना है. तो यहाँ ट्रिगर डॉट न्यू से एक एक रिकॉर्ड निकालना है. इसके लिए मैंने एक फॉर लूप लिखा. कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं एक एक रिकॉर्ड? ट्रिगर डॉट न्यू से. ये जो रिकॉर्ड यहाँ से निकल रहा है उसका डेटा टाइप क्या? लीड. वो जाके कहाँ स्टोर हो रहा है? एलडी रिकॉर्ड नाम के एक वेरिएबल में. और मैं फिर देख रहा हूँ कि इस रिकॉर्ड की, ये जो एलडी रिकॉर्ड है, जो पहला रिकॉर्ड जो आया है, फॉर एग्जांपल ये पहला रिकॉर्ड आया हुआ है, तो इसका इंडस्ट्री क्या है? स्विच कर रहा हूँ उसकी इंडस्ट्री पे. अगर इंडस्ट्री की वैल्यू बैंकिंग है तो एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू ये हो जाएगी. अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन चेक होगा. तो इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है? फाइनेंस. अगर फाइनेंस है तो ये, ठीक है. अगर इंश्योरेंस है तो ये. अच्छा, मान के चलो इनमें से कोई भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मैं व्हेन एल्स भी कर सकता हूँ. यहाँ पे ना, आपने जब मैंने स्विच स्टेटमेंट पढ़ाया था, तो वो एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि व्हेन एल्स, अगर इसके अलावा कुछ और है, इसके अलावा कुछ और है, देन यू कैन गिव एनी वैल्यू, देन एनुअल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0. ये भी कर सकते हो आप. व्हेन एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ दिस इज एनी वैल्यू, तो आप चाहे तो ये भी दे सकते हो. ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन. ये डिफॉल्ट वैल्यू हो गई. फिर कि अगर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, इनमें से कोई भी नहीं मिला तो क्या?
तो हम चाहें तो ये भी दे सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी डन। ओके, तो ये है मेरा प्रोग्राम और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव कर दिया मतलब मेरा ट्रिगर एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, लेट्स नाउ गो टू द सेल्सफोर्स एंड लेट्स परफॉर्म एनी अपडेशन। लेट्स परफॉर्म एनी अपडेशन। सो आई एम मेकिंग लाइक इंडस्ट्री, क्या है मेरा इंडस्ट्री एज अ बैंकिंग, तो एनुअल रेवेन्यू मेरे को ये मिलना चाहिए। ओके, सो अभी देखो आप एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू यहाँ पर ये है, आई एम मेकिंग दिस एज अ बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग करके सेव करता हूँ, तो आपके एनुअल रेवेन्यू की वैल्यू चेंज हो गई, इट्स 90 लाख। ठीक है, और ये इंसर्ट पर भी होगा ऑफकोर्स, ऐसा नहीं है कि इस पे होगा। एंड द नेक्स्ट वाज लाइक फाइनेंस, अगर फाइनेंस करता हूँ तो 76 लाख आना चाहिए यहाँ पे। सो मैं आई एम मेकिंग दिस एज व्हाट, फाइनेंस। लेट मी नाउ सेव इट। तो आपका सेकंड वैल्यू ऑटो पॉपुलेट हो जाता है 76 लाख। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। Okay. So if it is finance, that means that our logic is working absolutely fine. Now let me try to check it with any other option. Okay, apart from this energy consulting, apart from this, if I'm selecting any other option, let's see what happens. So if I'm selecting it like government or healthcare, hospitality, because these are not the option that is in the program. So let me try to save it and see what happens. So for any else apart from this, it's going to become zero. So this is how, this is how we can perform. This is something called as this kind of logic what we have developed just right now. This kind of thing actually is called as field dependencies. I mean, the value of annual revenue actually dependent on this field. So this is something, logically what you have implemented right now is something called as dependencies. How you can make a field to be get dependent onto the another field, onto the another field. अच्छा, एक चीज और, this can also be done with the process builder. Let me tell you this can also be done with the process builder. ठीक है, ये process builder से भी बनाया जा सकता है। You just require to create a formula field for that. कि ये जो हमने ये जो टेबल बनाया ना, इसके लिए आपको फॉर्मूला फील्ड बनानी पड़ती है कि if industry name is banking, annual revenue should be like this. तो this can also be done with the process builder. Now that's really up to you कि आप इसको कोड से करना चाहोगे या नॉन कोड से करना चाहोगे। आप कोडिंग से कर सकते हो, नॉन कोडिंग से। इफ यू आर मेकिंग इट फ्रॉम द कोडिंग, यू नीड टू राइट डाउन द ट्रिगर। इफ यू वांटेड टू डू द सेम थिंग विद द नॉन कोडिंग पार्ट, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोसेस बिल्डर। प्रोसेस बिल्डर से भी ये होता है, फील्ड डिपेंडेंसीज का ये क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फील्ड डिपेंडेंसीज। तो क्रिएटिंग द फील्ड डिपेंडेंसीज कैन बी डन इन बोथ वेज, नॉन कोडिंग एज वेल एज कोडिंग। नॉन कोडिंग और कोडिंग दोनों से होता है ये। ठीक है, सो दैट्स रियली अप टू यू कि आपकी प्रैक्टिस किस पे है एंड व्हाट यू फाइंड एज अ मोर फिजिबल वन। सम पीपल फाइंड इट फ्रॉम द नॉन कोडिंग पार्ट, सम यूज्ड टू फाइंड इट मोर फिजिबल फ्रॉम द कोडिंग, वो अपने अपने ऊपर रहता है। बट दिस काइंड ऑफ थिंग व्हाट यू हैव डेवलप्ड जस्ट राइट नाउ इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग द फील्ड डिपेंडेंसीज, creating the dependencies of the fields between each other. ठीक है, that means कि based on the value of industry, the value of annual revenue is going to be get calculated. So this was just a small example of that. ठीक है, चलो let me go ahead and try to, because we have time, so let me try to create one more trigger. हाँ, एक चीज और यहाँ पे जैसे नोट करके लिखा, ये भी बता देता हूँ कि सी आई एम गोइंग टू शेयर वन डायग्राम फॉर दिस, डायग्राम कॉल्ड एज Salesforce order of execution. I'll be sharing one diagram for this. I'll be sharing one diagram with name Salesforce default Salesforce default Salesforce flow of execution. So I'll be sharing this diagram with you guys. तो उस diagram की मदद से आपको पता चले कि how actually the entities in the Salesforce are going to be get executed. What is the sequence? Which thing will be going to get executed first, and then the next thing what is going to be get executed. तो ये थोड़ा सा ना default flow of execution जिसको बोलते हैं। तो I have one diagram with me. I'm going to share you that. ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि इफ देयर इज समथिंग दैट कैन बी, if I have written a validation rule and the same thing I'm writing with a before trigger also. ठीक है, because when we have started this, in the first day itself I told you one thing, validation is the only thing, validation is the only thing that fires before, right? Apart from validation, every else logic is going to be get fired after, after inserting the record, right? But validation is the only thing that fires before you insert a record. That means before insertion and before updation,
This could be done with the validation rule, that could also be done with the trigger. So this is a common question in every interview कि if there is something that for which I have written a validation rule, let's say for this example itself, कि आपने you created a validation rule, you created a validation rule for that, wherein you are checking कि before inserting a record into lead object, what is the industry type. If the industry type is banking, the annual revenue is going to be this value. तो for this this you could even write down, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि एक formula field एक validation rules के आप इसको implement कर सकते हो. And the validation rule also fire before insert and before update. Validation rules also fire before insert and before update. Rest other और entities वो after insertion after update है. Roll up summary आपका after delete है, after undelete also roll up summary चलता है ना. But the validation rule is the only entity, a non-programming entity that fires before event. I mean before inserting and before updating. And for this we have written a trigger. Before insert and before update trigger हमने लिखा है. So there is a common question in every interview. If something is there, if there is a requirement, and if for example I created in two different ways, I created a validation rule for that, and even I have written a before trigger. What kind of trigger this is a before trigger, right? Before insert before update is a before trigger. So what kind of trigger this is a before trigger. So they will ask you this. For example, let's say there is an operation, there is a kind of business logic, there's a business logic which I have implemented with two things, validation rule as well as before trigger, and both of them probably is performing same thing. Both of them are actually what they are going to check the same thing. Let's understand this only, this is what we are checking it with the validation rule, and this is also we are checking it, we have written a business logic in the triggers also. So if the same business entity, if the same business requirement has been implemented with two different ways, with the validation rule as well as with the before trigger, which one is going to be get executed first? दोनों में से कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा? That is a common question. This one is a common question in every interview. Which one is going to be get executed first? So the answer of this is like, it's always before trigger. It's always before trigger. Before trigger always executed first. Before your validation rules, system validation, custom validation, before your workflows, before your process builder. Before trigger is always executed first. So when I will be sharing this diagram, that flow of execution, the Salesforce default flow of execution, देन यू विल, उसके बाद में फिर मैं एक बार और डिस्कस करूंगा इसके बारे में. बट राइट नाउ बिकॉज अभी ये बात निकली कि हमने बिफोर ट्रिगर बनाया, और अगर हमने एक वही सेम एंटिटी के लिए, इफ द सेम एंटिटी, इफ वी हैव क्रिएटेड वैलिडेशन रूल आल्सो, देन तो दोनों में से कौन सा पहला फायर होगा? वैलिडेशन रूल पहले फायर होगा या ट्रिगर? तो ट्रिगर्स मतलब बिफोर ट्रिगर, आफ्टर ट्रिगर बाद में होता है, आफ्टर ट्रिगर से पहले वैलिडेशन रूल होता है. तो अगर बाय द वे, अगर और कंफ्यूज करने के लिए, इफ आई आस्क यू दिस अ क्वेश्चन, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इफ ऑन द सेम एंटिटी, इफ आई हैव ट्रिगर्ड ऑन द सेम एंटिटी, ऑन द सेम बिजनेस रिक्वायरमेंट, इफ आई हैव क्रिएटेड अ वैलिडेशन रूल and a trigger, not, I'm not saying before and after, I'm saying and a trigger, which one is going to be get executed first? So you need to make a cross question to me. आपको मुझसे एक वापस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, what kind of trigger, what kind of trigger? Because if it's a before trigger, then before trigger will execute it first. But if it's an after trigger, अगर before के बजाय if it's an after trigger, then validation rule will be executed first, उसके बाद after trigger. तो वो मैं डायग्राम शेयर करता हूँ उसके बाद, अभी है नहीं एक्चुअली मेरे पास में, आई नीड टू इम्पोर्ट इट. यहाँ पे मैं देखा, आज ही देखा मैंने, आई डोंट सी दैट डायग्राम, नहीं है मेरे पास में. मैं देखा वो डायग्राम, काफी सर्च किया, तो मैं बुलवाता हूँ डायग्राम. नहीं, वो नहीं है एक्चुअली मेरे पास में, मैं देखा हूँ. आई ट्राई टू सर्च इट इन ऑनलाइन में, मिलेगा क्या? Salesforce order of execution. नहीं है. So there is no suitable image that I could open and explain it.
What is this? Mhm. Somehow I could explain with this. थोड़ा बहुत तो बता सकता हूँ किसी as soon as like नहीं यहाँ गलत बताया. System validation rules are not executed first. सबसे पहले before trigger execute होता है. ये गलत है diagram. This diagram is wrong. ये तो बहुत ही छोटी सी इमेज है. ठीक है, मैं वो डायग्राम मैं ढूंढता हूँ. वो है मेरे पास, कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा ड्राइव वगैरह में. I have that diagram somewhere in a Google Drive. मैं ढूंढ के निकालता हूँ. Salesforce default order of execution. ठीक है, अभी तो नहीं है, देख लेते हैं. एनीवेज, सो अगर बाय द वे दिस इज द क्वेश्चन, तो आपको पूछना पड़ेगा कौन सा ट्रिगर है, बिकॉज इफ इट्स अ बिफोर ट्रिगर्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. ठीक है, चलो. ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Write down a trigger on the account object and to prevent the deletion of the active account. Okay, that is also one of the important trigger. First of all, let's discuss the use case. For example, we have so many account records. Let me go with the all accounts and phone type. Let me bring one more column over here. Active status. Let me bring one more column. Active is already here. Okay, let me save it. ठीक है, क्या हो रहा है ये? गॉट इट यहाँ पर है. ठीक है ना. Let's save it. See, there are so many different account records. Some of them are having active status as yes, some of doesn't have it. Some of them are having the active. Most of them are having the active status as to be yes. What we want, if the account is active, if it's an active account, that means the status is active. The active status is yes. Then prevent the deletion of this. We shouldn't delete. We shouldn't allow the user to delete this kind of record. अभी जैसे देखो data loader. This one is actually this one is an active account record. ठीक है. Now can I delete this? Can I delete this? Yes, I can delete that. हो गया delete. ठीक है. ABC entitlement. This one is again a record which active status is yes. Okay. Which active status is yes. Can I delete this? Yes, I can delete that. No problem. This I wanted कि ये नहीं होना चाहिए. This I wanted to prevent. I wanted in such a way कि based on certain entity, certain record should not be get deleted. How can you restrict the user that he shouldn't based on certain? अभी active status is just an example, हाँ. But try to understand the logic. वो logic को समझो, requirement को समझो कि based on certain field, based on certain value of the field, we wanted this record shouldn't be get deleted. बाकी डिलीट हो तो चलता है, बट द काइंड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड दोज हु आर एक्टिव स्टेटस इज यस, तो उसको अपने को डिलीट होने से बचाने का है ना, उसको अपने को डिलीट होने से बचाने का. सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन दैट ट्रिगर, हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन दैट ट्रिगर, राइट. चलिए, तो ट्रिगर्स पे चलते हैं वापस. नाउ सो सी, वी आई ऑलरेडी हैव ट्रिगर, आई क्रिएटेड अ ट्रिगर on the account object. I could do one thing is like I could create a separate trigger, but let me try to implement a best practice over here. Okay. As I have told you कि on a single object we should always try to create one trigger unless and until it's very much essential, then go and create another trigger, then go and create another trigger. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस और सिखा रहा हूँ. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू ओवर हियर, हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ. व्हाट वी आर ट्राइंग, वी आर, क्या मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट करने की बात कर रहा हूँ या डिलीट करने की बात कर रहा हूँ. पहले तो आप मुझे यूज केस बताओ. यहाँ ये जो एग्जांपल है, व्हाट आई वांटेड टू प्रिवेंट द डिलीशन. इसके पहले कि मैं डिलीट करूं, बिफोर डिलीट, समझो अभी सीधी सादी जुबान में समझो. इससे पहले कि मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करूं, मुझे चेक करना उसका एक्टिव स्टेटस क्या है. इससे पहले कि मैं कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करूं, अकाउंट के रिकॉर्ड को, दैट मीन्स बिफोर डिलीट आई वांटेड टू चेक फॉर द स्टेटस, एक्टिव स्टेटस. अगर वो येस है तो मेरे को स्टॉप कर देना है. अगर वो येस के अलावा कुछ भी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डिलीट हो जाने दो, डिलीट हो जाने दो. तो ये कौन सा इवेंट नजर आ रहा है आपको, यहाँ इंसर्शन अपडेशन नहीं है, दिस इज अ डिलीट की बात चल रही है ना. डिलीट में भी क्या, डिलीट करने के बाद देखना है या डिलीट करने से पहले देखना है. डिलीट करने से बाद में देख के फायदा ही क्या है, रिकॉर्ड तो जा चुका है. तो ऑब्वियसली आपको डिलीट करने से पहले देखना है. तो यहाँ जो इवेंट आपको बनाना है ना, वो है बिफोर डिलीट. तो अब मैं इसी ट्रिगर में एक और अपडेशन कर रहा हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर ट्रिगर, मैं कर सकता हूँ लेकिन एज अ बेस्ट प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए. ट्राई टू क्रिएट इन
your business logic for every if you have a trigger on this object account, to try to implement your logic over here only. Do not create separate triggers for every entity. तो मैंने बिफोर सबसे पहले तो इवेंट ऐड किया बिफोर डिलीट। अब बिफोर डिलीट के लिए दूसरा लिखूंगा। यहाँ ये लॉजिक जो मेरा काम कर रहा है वो किसके लिए, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ये इंसर्ट और अपडेट वाला है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ ट्रिगर डॉट इज बिफोर, इज बिफोर है, ट्रिगर डॉट इज बिफोर है, बिफोर ही है, ठीक है, लेकिन लेकिन ट्रिगर डॉट इज डिलीट है, ठीक है। तो आप ये वाला लॉजिक पे जाओ, तब आप ये बिजनेस लॉजिक पे जाओ। तो यहाँ पे कैसा होगा कि इट विल गोइंग टू कंपेयर, अगर यही ट्रिगर काम करेगा, अभी देखो इंसर्ट और अपडेट के लिए आपका ये बिजनेस लॉजिक रहेगा, और वही अगर सेम आप डिलीट के लिए जाते हो, बिफोर डिलीट पे जाते हो, बिफोर और डिलीट पे जाते हो, तो ये वाला जो पोर्शन जो अभी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ ना, वो काम करेगा, दिस विल गोइंग टू वर्क। ठीक, तो इस तरह से हम जो है ना multiple triggers on the same object we used to avoid this unless and until it's very much essential to separate the logic. Otherwise, always try to create one trigger per object. Always try to create one trigger per object. Always try to create one trigger per object. तो मैंने कल एक ट्रिगर बनाया था, ये उसका बिजनेस लॉजिक था। अगर आज का लॉजिक बाय द वे मेरा फिर से इंसर्ट एंड अपडेट के अंदर होता ना, तो मैं इसी के अंदर एक और कुछ ना कुछ कर लिया रहता था। लेकिन अभी मेरा बिकॉज डिलीट के ऊपर है, तो मैंने सबसे पहले तो इवेंट ऐड किया, और उस इवेंट के लिए फिर मैं नया यहाँ पे कंटेक्स्ट वेरिएबल लेके नया यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। चलो, अब डिलीट करना है ना, तो फिर मैं तुमको अब एक दूसरा कुछ बताना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकता हूँ। अब ट्रिगर डॉट ओल्ड का कंसेप्ट बताता हूँ तुमको। ट्रिगर डॉट ओल्ड, चलो, जैसे तुमने ट्रिगर डॉट न्यू देखा, अब देखो ट्रिगर डॉट ओल्ड, और ये ऐसा ही पीरियोडिकली ही पढ़ना पड़ता है इसको। एक ही दिन में अगर ट्रिगर न्यू, न्यू मैप, ओल्ड, ओल्ड मैप पढ़ोगे ना, तो तुम कुछ समझेगा नहीं। इसीलिए इसको पीरियोडिकली ब्रेक करना पड़ता है एज पर यूज केस, तभी समझ में आता है। और हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप यकीन मानो, हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम उस चीज को तभी हिट करते हैं जब उसकी जरूरत है, अदरवाइज अपन सर पे बोझा लेके नहीं घूम रहे हैं। ठीक है, आइए, अब ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या है, या ओल्ड मैप क्या है। ओल्ड और ओल्ड मैप बाद में आऊंगा मैं, अभी ओल्ड मैप पे, या न्यू मैप और ओल्ड मैप पे बाद में आऊंगा, अभी सिर्फ ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट समझ लो। देखो यार, न्यू का कंसेप्ट तुमको पता है, न्यू स्किप करता हूँ, न्यू को स्किप करता हूँ, एक मिनट। चलिए, सो ट्रिगर न्यू और ओल्ड के बीच का फर्क समझो। ट्रिगर डॉट न्यू वाला जो पार्ट है आपका, ये इंसर्ट और अपडेट में यूज होता है। ठीक है, ये आपका हमेशा इंसर्ट और अपडेट में यूज होता है। दूसरा जो है ट्रिगर डॉट ओल्ड, अब ये कैसा है, नाउ फॉर एग्जांपल सी, मैंने दिस इज माय अकाउंट रिकॉर्ड, ठीक है, दिस इज माय अकाउंट रिकॉर्ड, यहाँ पे ये काफी सारे राम कुमार, संतोष, किरण, प्रसाद, ये दीज आर सम ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, सम ऑफ द अकाउंट रिकॉर्ड। मैंने एक क्वेरी फायर किया, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट आईडी, नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री फ्रॉम द अकाउंट, बट आई डोंट वांट एवरी अकाउंट, रादर आई वांट ओनली दोज अकाउंट हुज इंडस्ट्री इज बैंकिंग, हुज इंडस्ट्री इज बैंकिंग। तो ये अभी जैसे 4 रिकॉर्ड में से ये कितना पोर्शन मेरे को फिर इस क्वेरी ने निकाल के दिया होगा, कितना पोर्शन निकाल के दिया होगा, इतना पोर्शन निकाल के दिया होगा, इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट। बिकॉज ये वो रिकॉर्ड्स हैं बैंकिंग के जिसका इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग, जिसका इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग। एंड नाउ फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू डिलीट दोज रिकॉर्ड, मुझे डिलीट करना है, मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो ठीक है, अभी क्या होता है कि दिस ऑल रिकॉर्ड जो भी आप डिलीट कर रहे हो, दे ऑल रिकॉर्ड विल गोइंग टू बी गेट स्टोर्ड इनसाइड वन ऑफ द मेमोरी विद द नेम कॉल्ड एज ट्रिगर डॉट ओल्ड, जिसको भी आप डिलीट कर रहे हो। तो जिस तरह से ट्रिगर डॉट न्यू एक मेमोरी, एक लिस्ट कलेक्शन है, बिल्कुल उसी तरह से ट्रिगर डॉट ओल्ड भी एक लिस्ट कलेक्शन, एक मेमोरी। दोनों के काम को समझो आप। ट्रिगर डॉट न्यू का whenever either we are inserting or updating a record, whenever either we are inserting or updating a record to perform the validation, जो भी बिजनेस मतलब ट्रिगर को जो वैलिडेशन लगाने, जो चेक करना है ना, तो वो कहाँ ले जाके चेक करता है, ये उसका कैबिन है, वहां ले जाके सारी फ्रिस्किंग करता है वो। इन द सेम वे, अगर आप डिलीट कर रहे हो, इफ यू आर डिलीटिंग द रिकॉर्ड, ठीक है, अच्छा डिलीट भी छोड़ो, डिलीट भी छोड़ो,
दूसरा कुछ समझो, डिलीट डिलीट तो वैसे सिंपल है। दूसरा और कुछ समझो कि अभी जैसे मान के चलो कि मैंने एक एसक्यूएल फायर किया। अभी इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ट्रिगर डॉट न्यू और ओल्ड के बीच का फर्क समझो, ठीक है। न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू जो है ना, ऐसा मान के चलो इट इट विल वर्क फॉर न्यू रिकॉर्ड। हालांकि पुराने रिकॉर्ड पे अपडेट करते हैं तब भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में अज्यूम करो कि ट्रिगर डॉट न्यू जो है ना वो सिर्फ न्यू रिकॉर्ड पे काम करता है, नए रिकॉर्ड पे। अभी तुम बोलो सर अपडेट भी करते हैं तो वो तो पुराना रिकॉर्ड रहता है। अच्छा ठीक है ना, एक्सेप्ट किया। बट ऐसा फिर मैं क्वेरी, अभी कैसा अपन दोनों वकील, तुम वकील मैं भी वकील, तो मैं फिर बोलूंगा ठीक है, तुम बोल रहे हो कि अपडेट किया वो तो पुराना रिकॉर्ड था। फिर मैं बोलूंगा अगर अपन ने उसको अपडेट कर दिया, अभी उसमें कुछ नई वैल्यू डाल दी, तो वो तो नया रिकॉर्ड बन गया। बात वही है ना, आप अपडेट भी कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड अब क्या बन जाता है, नया रिकॉर्ड। ठीक है, तो कुल मिला के मैं जीत गया और तुम केस हार गए। चलो अब क्योंकि मैं जीत गया हूं तो मेरी बात चलेगी। तो ट्रिगर डॉट न्यू नए रिकॉर्ड के लिए काम करता है, ऐसा अज्यूम करना। फिर चाहे वो नया रिकॉर्ड कौन सा है, अभी अभी फ्रेश लाया अपन ने मार्केट से, उसको नया रिकॉर्ड है। और दूसरा पुराने रिकॉर्ड को थुक पॉलिश करके नया बना दिया, तो नया रिकॉर्ड है। ट्रिगर डॉट न्यू काइप के लिए काम करता है, नए रिकॉर्ड के लिए। और न्यू मैप भी, न्यू मैप क्या है बाद में देख लेंगे, लेकिन दोनों वही काम करता है, ठीक है। ट्रिगर डॉट ओल्ड जो है ना, वो पुराने रिकॉर्ड के लिए काम करता है, पुराना रिकॉर्ड। तो पुराना रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड के बीच का फर्क क्या है? नया रिकॉर्ड वो है जो अभी तक ऑब्जेक्ट में इंसर्ट नहीं हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं। नया रिकॉर्ड वो है जो अभी तक ऑब्जेक्ट में इंसर्ट नहीं हुआ है। इंसर्ट करने से पहले उसकी फ्रिस्किंग कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, जो भी वैलिडेशन लगाना है वो लगा रहे हैं। अच्छा, ओल्ड में क्या है? ओल्ड क्या है? ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या है? जहां पुराना रिकॉर्ड है। तो अब जैसे मैंने एक एसक्यूएल फायर किया, इसने मेरे को वो सारे रिकॉर्ड दे दिया जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है। कितने रिकॉर्ड दिया? ये सारे रिकॉर्ड दे दिया। अब ये जो रिकॉर्ड आए, एक दो तीन रिकॉर्ड, संतोष कुमार, ये किरण कुमार, प्रसाद कुमार, इन पे मुझे कुछ तो भी चेक करना है। तो वो मैं कहाँ करूंगा? तो ये सारे ओल्ड रिकॉर्ड जो पहले से मौजूद थे, जिसपे आपने एसक्यूएल फायर किया, उस पे वैलिडेशन लगाना है, तो दे विल गोइंग टू बी गेट स्टोर्ड इनसाइड वन ऑफ द मेमोरी कॉल्ड एज ट्रिगर डॉट ओल्ड। ओल्ड रिकॉर्ड यानी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड थे, पहले से थे, उसको अपन ने फेच करके लाए। कहाँ कैसे फेच करे? कैसे फेच करे? एसक्यूएल फायर करा, एसक्यूएल फायर किया तो ये पूरा रिकॉर्ड निकला। अब ये जाके एक कलेक्शन में स्टोर होता है, और वो कलेक्शन का नाम है ट्रिगर डॉट होल्ड। अब यहाँ पे तुमको जो भी वैलिडेशन लगानी है वो लगाओ। जैसे मान के चलो कि एक एग्जांपल, कैसे जितने भी रिकॉर्ड जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है, ठीक है, अब उसमें से किसी का जो रेटिंग है वो वार्म है, किसी की कोल्ड है, किसी की हॉट है, ऐसा कुछ भी। बट आप क्या चाहते हो कि ऐसे कोई भी रिकॉर्ड जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है उनकी सबकी रेटिंग हॉट होने को ना। तो वो कैसे करोगे? वो वैलिडेशन कैसे लगाओगे? तो वो वैलिडेशन लगाओगे आप यहाँ पर, ट्रिगर डॉट ओल्ड पर। ट्रिगर डॉट ओल्ड पे क्या लगाओगे? वैलिडेशन लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में इन सब की जो वैल्यू है वो चेंज कर दोगे। अब ये नया वैल्यू आ गई, नई वैल्यू यानी जितनी भी इंडस्ट्री, जिसकी सबकी इंडस्ट्री बैंकिंग थी, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी रेटिंग की वैल्यू होगी हॉट। अब इसको स्टोर करना है, अब इसको वापस हमें स्टोर करना है, वापस स्टोर करना है। तो देखो अब ये रिकॉर्ड जिसपे जब इसको लाया आपने, तो लाके कहाँ रखा? ट्रिगर डॉट ओल्ड पे, वैलिडेशन लगाया। अब इसमें वैल्यूज नई बन गई है, अब इसको स्टोर करना है। तो कुछ भी स्टोर करने से पहले वो कहाँ जाना चाहिए? ट्रिगर डॉट न्यू में। इसीलिए ट्रिगर डॉट ओल्ड से डेटा कहाँ जाता है? ट्रिगर डॉट न्यू में, और फिर न्यू से वापस जाता है। तो ये होता है अपडेट ऑपरेशन, ये अपडेट। अभी एक एग्जांपल में दोनों समझ लो, एक एग्जांपल में दोनों समझ लो। लेकिन अब मैं डिलीट की तरफ जाता हूँ, डिलीट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अभी हमारा जो एग्जांपल है डिलीट, डिलीट में ये पोर्शन नहीं होता है, डिलीट में ये पोर्शन नहीं होता है। मैंने ऐसे एक एक क्वेरी फायर किया, फिर से वही एग्जांपल, मैंने क्वेरी फायर किया और अकाउंट में से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स फेच किए जिसकी इंडस्ट्री थी बैंकिंग, तो मुझे ये वाले रिकॉर्ड मिल गए। ठीक है, अब ये जब फेच हो गए हैं तो ये कहाँ जाएंगे? ट्रिगर डॉट ओल्ड पे जाएंगे। ट्रिगर डॉट ओल्ड पे जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट कर रहा हूँ मतलब सारे रिकॉर्ड यहीं से डिलीट हो जाएंगे। अब ये वापस कुछ स्टोर करना है क्या मुझको? नहीं, नहीं, बराबर है। इसलिए यहां से कुछ ट्रिगर डॉट न्यू पे नहीं जाता, सिर्फ डिलीट में, सिर्फ डिलीट में, सिर्फ डिलीट में। ठीक है, सिर्फ डिलीट में। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, एक आखिरी डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से समझो इस चीज को। अक्सर लोगों को यही दिक्कत रहती है, लेकिन अगर तुम सिस्टमेटिकली समझोगे ना तो तुमको नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। अगर तुम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, इफ यू आर इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड, इसको अच्छे से एक डायग्राम बनाना, अच्छे से एक डायग्राम बनाना, अच्छे से एक डायग्राम बनाना। इफ यू आर इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड, फ्रेश रिकॉर्ड, बिल्कुल अभी तक नहीं था, अभी अभी आया है, ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना। इफ यू आर इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड, एकदम नया रिकॉर्ड है, इसके पहले था ही नहीं,
तो आपका ट्रिगर डॉट न्यू यूज होगा, सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू, सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपडेशन कर रहे हो, पुराने रिकॉर्ड को लाया, थुक पॉलिश किया, नया बनाया, तो बस जब तुमने उसको फेच किया, जब तुमने उसको फेच किया पुराने रिकॉर्ड को, जब तुमने फेच किया तो फेच करके कहाँ जाता है वो, ट्रिगर डॉट ओल्ड पे। तो सबसे यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, सबसे पहले ट्रिगर डॉट ओल्ड, सबसे पहले ट्रिगर डॉट ओल्ड, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है, फेच हुआ, फेच होके कहाँ गया, ट्रिगर डॉट ओल्ड पे। उसके बाद तुमने थुक पॉलिश किया उसको, ठीक है, घस 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 के उसको एकदम चमका दिया, चमका दिया, जो भी वैलिडेशन करना था वो कर दिया। उसके बाद वो कहाँ स्टोर हुआ, ट्रिगर डॉट ओल्ड से वो ट्रांसफर होता है ट्रिगर डॉट न्यू पे, और ट्रिगर डॉट न्यू से फिर वो वापस ऑब्जेक्ट में जाता है। ये तुम्हारा अपडेट ऑपरेशन। अगर तुम डिलीट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो यहाँ से ये फैच होता है, ये फैच होता है, सिर्फ ट्रिगर डॉट ओल्ड पे जाता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। बस हो गया खत्म, ट्रिगर डॉट ओल्ड पे आ गया, एंड नाउ ही इज नो मोर, खत्म रिकॉर्ड, यहाँ से स्वर्ग सिधार गया, खत्म बात। तो ये टेबल छोटा सा टेबल है लेकिन बहुत काम का टेबल है। इंसर्ट ऑपरेशन में क्या यूज होता है, ट्रिगर डॉट न्यू। अपडेट ऑपरेशन में ट्रिगर डॉट ओल्ड, उसके बाद ट्रिगर डॉट न्यू, और डिलीट में सिर्फ ट्रिगर डॉट ओल्ड, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर डॉट। अब ये डायग्राम थोड़ा तरीके से बनाओ और प्लीज यार ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि फिर मैं आगे के बैचेस के लिए यूज कर लूँ उसको। ओके, क्योंकि थोड़ा सा कोई भी एक आप में से, आप सभी अच्छे लोग हैं, कोई भी एक आप में से जरा सा ये डायग्राम अच्छे से बनाए। तो अभी जो मेमोरी हम यूज करने वाले हैं वो हमारा ऑपरेशन है डिलीट। डिलीट के लिए कौन सा ऑपरेशन, कौन सी मेमोरी है अपनी, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड, सिर्फ ओल्ड। चलिए वापस चलते हैं प्रोग्राम पे। तो मैं कर रहा हूं डिलीटिंग। डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है, मेरा जो रिकॉर्ड है वो कहां पर है, ट्रिगर डॉट ओल्ड पे। ठीक है, मेरा जो रिकॉर्ड है वो कहां पर, ट्रिगर डॉट ओल्ड पे। तो मैंने लगाया फॉर लूप, एनहांस फॉर लूप। कहां से लाना है मुझको, एक एक रिकॉर्ड कहां से लाना है, ट्रिगर डॉट ओल्ड से लाना है। एक एक रिकॉर्ड जो आएगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, अकाउंट। अकाउंट का कोई भी एक वेरिएबल, जैसे एसीसी, ठीक है, अकाउंट एसीसी। तो यहां से एक एक रिकॉर्ड आएगा, जो एक एक रिकॉर्ड आ रहा है उसको क्या करना है, अपने को चेक करना है। क्या चेक करना है कि अगर एसीसी का एक्टिव स्टेटस, जो भी रिकॉर्ड आया है उसका एक्टिव स्टेटस इक्वल्स टू यस, अगर उसका एक्टिव स्टेटस यस है, ठीक है, अगर उसका एक्टिव स्टेटस यस है और यूजर अटेम्प्ट कर रहा है डिलीट करने को, यूजर अटेम्प्ट कर रहा है डिलीट करने को, यूजर अटेम्प्ट कर रहा है डिलीट करने को, तो अपन एक एरर उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, एसीसी डॉट एड एरर, एसीसी डॉट एड एरर। इसको टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज ही ले लेता हूँ उसको, टॉप ऑफ द पेज ही ले लेता हूँ उसको, है ना, फील्ड पे नहीं दिखाता। एसीसी डॉट एड एरर, क्या एरर देंगे अपन उसको, क्या एरर देंगे, यू कैन नॉट डिलीट एन एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड। पागल पागल हुए क्या रे, बोले एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है क्या रे। यू कैन नॉट डिलीट, DELET, अभी स्पेलिंग मिस्टेक है, यू कैन नॉट डिलीट एन एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड। आगे जो भी लिखना है लिख देना, दो चार गालियां लिखनी है लिख देना, ठीक है। तो ये, और इसको मैं किया सेव। तो मैंने क्या किया ना कि बिफोर डिलीट, जैसे ही यूजर ने डिलीट अटेम्प्ट मारा, उधर उसने डिलीट का बटन दबाया, इधर अपना ट्रिगर फायर हुआ। उसने डिलीट का बटन दबाया, उसने इधर डिलीट का बटन दबाया, देखा एक्टिव स्टेटस है यस है, उसका डिलीट का बटन दबाया, उसने जैसे ही इसको डिलीट का बटन दबाया, इधर अपना ट्रिगर फायर हो गया। ट्रिगर ने वो रिकॉर्ड को पट से खींच के लेके आया ओल्ड मेमोरी पे। ओल्ड के बाद में उसको चेक किया कि इसका एक्टिव स्टेटस क्या है, एक्टिव स्टेटस यस है, तो पटाख से एक एरर थ्रो कर दिया, और जैसे ही एरर थ्रो करा आपका ऑपरेशन वहीं स्टॉप हो गया। मतलब अब आप वो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको टेस्ट करते हैं। सेव कर लिया मैंने, सेव कर लिया मतलब रिकॉर्ड में ट्रिगर मेरा एक्टिवेटेड है। तो ये जो रिकॉर्ड है इसका एक्टिव स्टेटस क्या है भाई, यस। इसके पहले मैंने डिलीट किया है एक्टिव स्टेटस वाले। अब देखो मैं डिलीट मारता हूँ, डिलीट जैसे ही मारा मैंने, उधर ट्रिगर मेरा फायर हो गया। यू कैन नॉट, कहाँ है, यू कैन नॉट डिलीट एन एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड। वैलिडेशन, वैलिडेशन क्यों, बिकॉज ट्रिगर है, ट्रिगर वैलिडेट कर रहा है, और ट्रिगर बोल रहा है कि भैया यू कैन नॉट डिलीट एन एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड, नहीं कर सकते आप डिलीट। ये हो गया, आपने रोक दिया। कोई भी एक ऐसा अकाउंट जिसके एक्टिव स्टेटस यस है, कोई भी एक ऐसा अकाउंट जिसका एक्टिव स्टेटस यस है, उसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, इसको कर सकते हैं, इसका कोई माई बाप नहीं है भाई, इसका कोई माई बाप नहीं है। ट्राई करो डिलीट, हो गया डिलीट, खत्म कहानी, गया। आमिर खान, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, गया। अब ये रिकॉर्ड अपना ग्रैंड होटल्स एंड रिसोर्ट,
ठीक है, इसका एक्टिव स्टेटस यस है, डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हो गया आपका ऑपरेशन स्टॉप। तो दिस इज द वे यू प्रिवेंट डिलीशन। यूजर से अगर डिलीशन प्रिवेंट करवानी है, रोकनी है बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशंस, तो उसको आप जो है इस तरह से स्टॉप करो, इस तरह से आप यूजर को रोक दोगे कि तुम इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्राई विद दीज टू ट्रिगर्स एंड यू हैव सर्टन न्यू असाइनमेंट्स। ये 3-4 असाइनमेंट्स है, इसको पढ़ लेना। मैं इसके आगे यहाँ से शुरू करता हूँ, मेंटेन द यूनिकनेस। ठीक है, चलो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।